امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا، پاک افغان سرحدی قبائلی علاقوں میں موجود داعش خراسان خطرناک تنظیم ہے۔ پاکستانی فورسز نے داعش خراسان کے کئی اہم کمانڈرز کو ہلاک یا گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے کے اہم کردار شریف اللہ عرف جعفر کو پاکستان نے گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کے فوراً بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے رابطہ کر کے اطلاع دی۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں بے مثال کردار ادا کیا۔ محدود انٹیلیجنس معلومات کے باوجود اپنے وسائل سے بھرپور کارروائیاں کی۔ داعش خراسان کو گزشتہ مہینوں میں سخت نقصان پہنچا، وہ کمزور ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ نے دو ٹوک انداز میں بتایا کہ امریکہ کو پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں کہ بھارت سے تعلق ہو تو پاکستان سے نہیں ہو سکتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر بھی ثالثی کر سکتے ہیں۔ ایک صحافی کے سوال پر امریکی محکمہ خارجہ نے اشارہ دے دیا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا، کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ صدر ٹرمپ پاک بھارت مسائل سلجھا سکتے ہیں۔ امریکی صدر اپنا ہر قدم نسلوں پر محیط تنازعات حل کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بہت دلچسپ دن ہے اور ہر روز کوئی نیا واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ انہیں امید ہے کہ پاک بھارت تنازع جیسا کوئی معاملہ بھی صدر ٹرمپ کی مدت کے خاتمے سے پہلے حل ہو سکتا ہے۔ President Trump is a man of his word and انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ ہم سب کے درمیان یہ بات چیت ہو اور ہم امن کی طرف بڑھے۔ ہم ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا جو پیغام ہے، جو اعلانات ہے، جو بیانات ہے، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈیا wants to sabotage President Trump's peace efforts، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ تمام کوششیں ناکام ہوں گے اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میز پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے۔ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی کوششیں سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائے گا، کیونکہ امن خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر یہ معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف کی پروموشن کے سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جنگ میں مسلح افواج کی کامیاب قیادت کے اعتراف میں عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ بھارت جب تک سنتاس معاہدے پر واپس نہیں آتا، جنگ کا خطرہ رہے گا۔ پاکستانی سفارتی وفد برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے برسلز پہنچ گیا۔ پاکستان نے بھارت کی پاکستان مخالف مہم کو گمراہ کن اور جھوٹا بیانیہ قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مسترد کر دیا۔ کہا، بھارت اپنی سرحدوں سے باہر دہشت گردی کی سرپرستی اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی ظلم کو عالمی برادری سے نہیں چھپا سکتا۔ پاکستان امن، بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت اور عزم رکھتا ہے۔ بھارتی بیانیہ ناکام فوجی مہم جوئی کے بعد مایوسی کا عکاس ہے۔ پاکستان کا بھارت کو حالیہ اشتعال انگیز اقدامات کا جواز تراشنے سے باز رہنے کا مشورہ۔ امریکہ چین ٹیرف جنگ ختم، صدر ٹرمپ نے چین سے تجارتی معاہدہ طے ہونے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ چینی درآمدات پر 55% ٹیرف وصول کرے گا۔ چین امریکی درآمدات پر 10% ٹیرف لگائے گا۔ چین امریکہ کو طاقتور مقناطیس اور نادر معدنیات بھی دے گا جو اسمارٹ فون اور ہائی ٹیک اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں۔ امریکہ چینی طالب علموں کو امریکی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے مواقع فراہم کرے گا۔ حتمی منظوری ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ دیں گے۔ سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے۔ فرام مائی پرسپیکٹو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹو، ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن the reality is کہ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں۔
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया। 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देने की बात नहीं कर सकते। नौकरियां देने के लिए निजी शोबे को लीड करना होगा। सनतों को इतना मजबूत होना होगा कि वो एक्सपोर्ट कर सकें। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रिटेलर्स या होलसेलर्स से टैक्स के लिए यही रह गया कि फौज या पुलिस भिजवा दें। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5-6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए करने की वजह 9 साल से इजाफा न होना करार दे दिया। जियो न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। हर साल औसतन 6% की शरह से महंगाई हुई है। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज़्यादा इजाफे की बात ना होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मुआवजा है। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इत्मीनान का इजहार। कहा स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी इख्तलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस सवाल पर कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है, बैरिस्टर गौहर ने कहा कौन सा एहतजाज, वो जिम्मेदारी उमर अयूब साहब को दी गई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि जिस तरह ये काम किए जा रहे हैं ये सब बनाना रिपब्लिक में होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क का आइन और कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। समंदर पार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई की क़यादत की तरफ देखेंगे कि किस तरह बानी पीटीआई को रिहा करवाया जाएगा। ये लोग बानी पीटीआई को रिहा नहीं करना चाहते। इन्होंने बानी पीटीआई को कई माह तक कैद में ही रखना है। बानी पीटीआई ने सबको कह दिया है कि तैयारी मुकम्मल करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुलाकातें बेशक बंद कर दें, तहरीक नहीं रुक सकती। हमें पता है बानी पीटीआई ने क्या कहा हुआ है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अलीमा खान ने बताया 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत की अगली तारीख 26 जून दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत एक बार फिर मंसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने की वजह से कॉज मंसूख कर दी गई, तो शखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के 2 बार इनकार के बाद पुलिस को तीसरा मौका देना वक्त का ज़िया होगा। मुल्जिम ने अपनी जिद की वजह से 2 मौके ज़ाया कर दिए। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मजमूई तौर पर 7,000 टैरिफ लाइन्स में से 4,000 में टैरिफ को सिफर कर दिया गया है। पिछले 30 साल से टैरिफ इस्लाहात नहीं की गई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तनाजुर में टैरिफ इस्लाहात अहम है। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पिछले साल हमें टैक्स लगाना पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। इन्फोर्समेंट ना करें तो फिर 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इंडस्ट्री की मुसाबिकत को बढ़ाया जाएगा, इसलिए कम से कम उजरत को नहीं बढ़ाया गया। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल का कहना था कि जो बजट पेश किया गया है वो IMF से लॉक्ड है। हुकूमती अखराजात में जितनी कटौती की है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अब वक्त है कि मईशत पर उसी यकजहती का मुजाहरा किया जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, पानी के ज़खायर बढ़ाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इस साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान वर्कर्स तरसीलात ज़र तकरीबन 29% ज़्यादा रहीं। 11 माह में पाकिस्तानियों ने 34.89 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सिर्फ मई की वर्कर्स तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर रहीं, जो अप्रैल से 16% ज़ायद हैं। सिर्फ सऊदी अरब से मई में रिकॉर्ड 91.39 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तानियों ने भेजे। अरब अमारात से मई में 75 करोड़ 42 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। 11 माह में सऊदी अरब से 8 अरब 52 लाख डॉलर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात से 7 अरब 11 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 5.36 अरब डॉलर्स, अमेरिका से 3.43 अरब डॉलर्स, जबकि यूरोपीय यूनियन से 4.1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत के मुआशी इक़दामात और अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने फौजी फर्टिलाइजर, शिफा अस्पताल और बार काउंसिल समेत 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना देने के सवाल पर कहा कि दुनिया भर में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर टैक्स नहीं लगाए जाते। कोई भी इदारा कमिश्नर को खत लिखकर अपने गैर मुनाफा बख्श होने का सबूत देकर टैक्स से मुस्तस्ना हो सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाज एंड वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को मुआशी टीम ब्रीफिंग देती है जो नहीं दी गई। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने का इक़दाम पहली बार हुआ। बाद में वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट खत्म किया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद प्रो ग्रोथ बजट नहीं ला सकी, बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो इसे मुख्तार बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर मौशियात अमीन हाशमानी ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होंगी। साबिक नायब सदर काती माहीन सलमान ने कहा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया वो भी पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह आवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा कि अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी।
पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KPK हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वक्त भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके ब्रसल्स रवानगी से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा भेजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के लिए जल्द सेहतियाबी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने गुलदस्ता एवनफील्ड हाउस पहुंचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे के दौरान मसरूफियात के बाइस नवाज शरीफ से मुलाकात न कर सके। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और अमरीकी काउंसिल जनरल की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अमरीका को अहम आलमी शराकतदार समझते हैं। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सिफारती रवाबित फ़ाल रखना चाहता है। जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। पीपल्स पार्टी विफाकी जमात है, हम सिंध तक महदूद नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत, मकामी हुकूमतों और अवामी नुमाइंदगी की बात की है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। यही आपका असल मसला है। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। आपके बकौल आप सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। सिंध में बैठे लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। पंजाब में पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, इंशाअल्लाह अब भी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि भारत से जंग जीतने के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गई। जेहलम में मुगल बिरादरी के कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द ने दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मस्जिद नबवी के कलीद बरदार डॉक्टर शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली की मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं। शेख नूरी ने कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दीनी शख्सियात की रहनुमाई हमारे लिए बाइस साबित है। जाज़े मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज हो गया। पहली हज परवाज 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। कराची और कोयटा में भी हज परवाज़ों से हाजियों की वापसी।
اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حقابی نے کہا ہے کہ اسرائیلی سرحدوں کے اندر کسی فلسطینی ریاست کا قیام اب امریکہ کی ترجیح نہیں ہے۔ امریکہ نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا ہدف ترک کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں امریکی سفیر نے کہا کہ اگر کوئی فلسطینی ریاست بنی بھی تو وہ کسی مسلمان ملک کی سرزمین پر بنائی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بیان امریکی سفیر کی ذاتی رائے ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، صبح سے اب تک مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید، امداد لینے کے لیے آنے والے بھی شہداء میں شامل۔ امریکی حمایت یافتہ امدادی مراکز پر 15 روز میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے 170 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ خان یونس میں حماس کے ہاتھوں ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا۔ اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کے خاتمے کی کوششیں تیز، اپوزیشن جماعتوں کے اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے بل پر ووٹنگ آج رات ہو۔ فلسطینیوں پر تشدد کے لیے اکسانے پر برطانیہ سمیت 5 یورپی ممالک نے اسرائیلی وزیر خزانہ اور وزیر قومی سلامتی پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور ناروے میں دونوں اسرائیلی وزراء کے اثاثے بھی منجمد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 5 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندیاں لگا دی۔ الجزائر، ترکی، نیدرلینڈز، اٹلی اور غزہ کے 5 خیراتی اداروں کو دہشت گرد قرار دے کر بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کا کہنا ہے کہ ایران نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے غزہ جنگ کی آڑ میں اپنے پراکسی نیٹ ورکس کو استعمال کیا۔ گزشتہ 20 ماہ میں اسرائیل پر براہ راست حملے کے ساتھ امریکی فوج پر ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کی طرف سے راکٹوں، ڈرونز، میزائلوں اور بیلسٹک میزائلوں سے سینکڑوں حملے ہوئے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا کہ ایران کی جوہری ہتھیاروں کی جانب پیش رفت بھی جاری ہے، جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سابق مشیر ایلان مسک کا ٹرمپ پر اپنی حالیہ تنقید پر اظہار افسوس۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، انہیں گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ سے متعلق کی گئی اپنی کچھ سوشل میڈیا پوسٹس پر افسوس ہے۔ تنقید میں وہ بہت آگے نکل گئے تھے۔ ٹرمپ سے تنازع کے بعد ایلان مسک ٹرمپ پر تنقید والی کچھ سوشل میڈیا پوسٹ ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ دہشت گردی کی سازش کا الزام، کینیڈا سے پاکستانی شہری امریکہ بدر۔ 20 برس کے محمد شاہزیب خان کے خلاف نیو یارک میں فرد جرم عائد۔ محمد شاہزیب خان کو امریکہ کی عدالت میں آج پیش کیا جائے گا۔ شاہزیب خان کو دہشت گرد تنظیم داعش کی مدد کرنے کے الزام کا سامنا ہے۔ شاہزیب خان کو پچھلے برس ستمبر میں کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں شاہزیب خان کو عمر قید کی سزا کا سامنا ہو۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی کارروائیوں پر لاس اینجلس شہر میں 5ویں روز بھی احتجاج۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر سینکڑوں امریکی میرینز بھی تعینات۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے وفاقی فوج کی تعیناتی کے ٹرمپ کے فیصلے کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ایشیا کپ کی تیاری کے لیے پاکستان افغانستان کرکٹ سیریز کو 3 ملکی سیریز میں تبدیل کرنے پر غور۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 3 ملکی سیریز کے لیے بات چیت کا آغاز ہو گیا۔ سیریز کے حوالے سے باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر ایشیا کپ بھی UAE میں ہونے کا امکان ہے۔ اور ورلڈ کپ کوالیفائر میں عالمی چیمپئن ارجنٹینا اور کولمبیا کے درمیان کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے برابر۔ برازیل نے پیراگوئے کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔ دوسری جانب انٹرنیشنل فرینڈلی میچ میں سینیگال نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔